Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography, and what is our topic today? Soil resource. Soil resource is the most important here. According to the chapter, the soil is defined as a upper layer of the earth composed of loose surface material. It is a mixture of many substances including endless variety of mineral, remnant of plant and animals. Water and air also here. It is the end of product of continues to the interaction between to the parents material and local climate. Plant and animals is an organism and elevations of land here. Since each of the element of various over space, soil also is different from place to place. You know that there is an important point here. Since each of the element varies over to space, soil and also is different from the place to place. Soil is an important segment of our ecosystem as it is a serve on is anchorage of the plant and source of nutrients. Thus, the oil is the seed, the mediums, and fundamental raw material for a plant growth. Though it is a relatives of fertility, it is a effect of man as economics, activity, and space the density of our country. When the soil is a lost, property and culture are also lost here. Therefore, it is a valuable national and fundamental earth resource of the country here. The next important here a map. There is the most important here. India is a soil types here. The Indian soil types is a mountain soil is a present of Jammu Kashmir side. There is a mountain area here, and alpine soil is a present of Punjab, Delhi side, Uttar Pradesh, Bihar. There is the most important here alpine soil. There is a very fertility soil here, and red soil is a present here or other side. There is the Karnataka side is the most important, and latent soil is the Kerala side, and Maharashtra is the some area here. And there is the last is important here. Soil there is the most important, and there is important here a distribution for the all over India here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट मृदा संसाधन। देखिए मृदा संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मृदा आप कहो या आप मिट्टी संसाधन कहो तो ये दोनों का अर्थ एक ही है कि मृदा को मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये संसाधन आपको पता है किसी भी देश की इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और भारत जैसा देश जो कि कृषि प्रधान देश कहलाता है, इसके लिए जो है मृदा संसाधन होना कई मायने में महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो भारत में जो है बहुत विविधताएं भी पाई जाती है मृदा संसाधन के अंतर्गत। तो अगर किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ तो वहाँ पर जो है हर टाइप्स के जो है मिट्टी आपको नज़र आएगी। जिस क्षेत्र में जाओगे वैसे ही मिट्टी आपको नज़र आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है मृदा संसाधन के अंतर्गत। कहते हैं असंगठित पदार्थों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। तो ये तो सामान्य सी बात है। असंगठित पदार्थ से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो मिट्टी की होती है, जिसपे हम सब रहते हैं। ये अनेक प्रकार के खनिजों, पौधे और जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है खनिज, पौधे और जीव जंतुओं के अवशेषों से जो है इसकी परत का जो है निर्माण हुआ है। और ये जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु और भूमि की ऊंचाई के बीच लगातार परस्पर क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। इसमें से प्रत्येक घटक जो है क्षेत्र विशेष के अनुरूप बदलता ही रहता है। अंततः मृदाओं में भी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच विभिन्नता पाई जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस क्षेत्र में आप जाओगे वैसे ही आपको वहाँ पर मृदा जो है नज़र आएगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। कहते हैं मृदा यानी मिट्टी पारितंत्र का एक जो है महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ये पेड़ पौधे का आश्रय स्थल होने के साथ साथ उन्हें पोषक तत्व प्रदान भी करने का मुख्य स्रोत होते हैं। और आपको पता है कि पेड़ पौधों के कारण ही इंसान भी जीवित है, क्योंकि इनकी क्रियाओं से ही जो है इंसान हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो उसका जो है पालन पोषण होती है। इस प्रकार मृदा पौधों की वृद्धि के लिए सुरक्षित आधार एवं मौलिक कच्चा माल प्रदान करने के माध्यम होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मिट्टी अपनी तुलनात्मक उर्वरकता के द्वारा जो है मानव की आर्थिक क्रियाओं को काफ़ी प्रभावित करती है और अपने देश की जो नियति का निर्धारण करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी देश का जो है अर्थव्यवस्था इन्हीं चीज़ों पर जो है निर्धारित होती है। वहाँ की फर्टिलिटी मिट्टी के ऊपर ही सारे वर्गदमार जो होती है उसी के ऊपर होती है, सारे दबाव उसी के ऊपर होती है। अगर जिस देश में अगर देखिए मिट्टी अगर सही गुणवत्ता वाले नहीं हो तो वहाँ पर जो है कृषि करना संभव नहीं है।
और देखा जाए तो भारत के पास बहुत सातवां जो है बड़ा देश है और इसकी क्षेत्रफल बहुत ही कम है, लेकिन जनसंख्या देखा जाए तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे है। और इतनी बड़ी जनसंख्या को जो है भरण पोषण करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है, लेकिन यहाँ की मिट्टियों के कारण जो है यहाँ के लोगों की जो है भरण पोषण बहुत ही सरलता के साथ हो जाती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टियाँ जो है काफ़ी उपजाऊ होती है। कहते हैं मृदा को नष्ट होने के साथ ही जो है संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ही ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टियों को नष्ट होने के साथ ही संपत्ति एवं संस्कृति दोनों का ध्वस्त होना एक स्वाभाविक बात होता है। इसलिए मृदा भारत की जो है बहुमूल्य राष्ट्र एवं मौलिक भू संपदा है। इसलिए भारत की मिट्टी जो है बहुमूल्य है और जो भू संपदा के रूप में जो है इसको वर्णित किया जा सकता है। अब इम्पोर्टेंट ये भी रहता है कि इसको जो है किस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, ये आप जो है इसके मैप से ही समझ सकते हो। चलिए देखते हैं मैप में किस मिट्टी को कहाँ पर स्थान मिली और कौन से क्षेत्र को ये भरण पोषण करने के लिए और उर्वरकता क्षमता बढ़ाने के लिए जो है अपना कार्य कर रही है। इस मानचित्र में आप देख सकते हो कि सभी मिट्टियों का जो है अपना अपना स्थान यहाँ दर्शाया गया है और इसी कारणों से उन क्षेत्रों में जो है काफ़ी जो है उपजाऊ क्षमता भी रहती है। देखा जाए पर्वतीय मृदा जो है ऊपर के साइड आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर के साइड है, ठीक है, हिमाचल के साइड है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है पर्वतीय मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, तो इसका अपना एक स्थान है। अगर हम देखें अगले क्षेत्र में तो वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा देखिए जहाँ जहाँ है वो काफ़ी क्षेत्र उपजाऊ है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे आपको हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका बिहार हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कहते हैं ये मिट्टी जो है उपजाऊ क्षमता के लिए काफ़ी पर्याप्त है। और अब देख सकते हो कि यहाँ पर गुजरात के साइड भी कुछ क्षेत्रों में जो है जलोढ़ मिट्टी ही नज़र आएंगे और भारत के मैक्सिमम पार्ट में जलोढ़ मिट्टी का ही अपना दबदबा है। तो इससे काफ़ी देखा जाए तो भारत की उपजाऊ क्षमता जो है काफ़ी है और ये मिट्टी जो है इसके लिए उत्तरदायी है। अगर हम लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी जो है कई क्षेत्रों में आपको दिखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत के देखा जाए तो लाल मिट्टी का क्षेत्र जो है पूरे आपको कर्नाटका साइड दिखेंगे और कलकत्ता साइड भी दिखेगा और झारखंड के साइड भी आपको जो है लाल मिट्टी की ही नज़र आएगी। तो ये क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये काफ़ी क्षेत्रों में ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर काली मिट्टी की बात करें तो कहते हैं भारत के बीचों बीच अगर मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तो इधर साइड जो है काफ़ी काली मिट्टी के क्षेत्र जो है नज़र आ रहा होगा। अगर पेपरों में ऐसे ही अगर दिखाने के लिए अगर आपको आता है तो इससे आप ज्ञान जो है पर्याप्त मात्रा में रख सकते हो कि पर्वतीय मिट्टी जो होती है ऊपरी क्षेत्र में दिखती है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ पर आपको पंजाब से शुरू होकर जो है बिहार साइड जो है उत्तर प्रदेश साइड, इवन कि गुजरात में भी आपको नज़र आ जाता है। तो ये क्षेत्र को दर्शाना आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं रहेगा। लाल मिट्टी अगर देखिएगा तो ये कलकत्ता के साइड जो है आपको झारखंड के साइड होते हुए जो है कर्नाटका के साइड जो है कन्याकुमारी तक यही मिट्टी जो है लाल मिट्टी ही नज़र आएगी। उसके बाद काली मिट्टी जो है बीचों बीच में है यानी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र में आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और मानचित्र के रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें हम राजस्थानी मिट्टी, तो राजस्थानी मिट्टी जो होती है, रेतीली मिट्टी जो होती है, जर्नली आपको जो है किधर दिखेगी, राजस्थान साइड ही दिखेगी। तो राजस्थान साइड ही आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ डॉट डॉट लाइन दिख रहे हैं, तो ये राजस्थान साइड ही जो ये मिट्टी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो आप देख सकते हो कि भारत कहते हैं सातवां बड़ा देश और इसमें मिट्टियों की कितनी विभिन्नताएं पाई जाती है। तभी तो कहा जा सकता है कि भारत जो है हर चीज़ों में जो है सबसे अव्वल है और सबसे इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। अब कहते हैं भारत में देखिए इतने ही क्षेत्र में देखिए कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है, कम से कम यहाँ 5 टाइप्स के आपने मिट्टी के बारे में यहाँ पर जाना जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।